Jalandhar is a city located in the state of Punjab in India. Here is a brief description of Jalandhar. Jalandhar is located about 146 kilometers northwest of the capital of the state, Chandigarh, in the northern part of Punjab. It is one of the major cities in the state and is known for its fertile agricultural land. The history of Jalandhar district is divided into three periods: ancient, medieval, and modern. The name of this ancient city was derived from Nath Guru Jalandhar. According to the Vedas, this city was founded by Devasya Varma. Jalandhar was a part of the Indus Valley civilization, which included the entire Punjab and the present Jalandhar district. During the Middle Ages, around 1070, Ghazni conquered Jalandhar and Doaba. Later, it became a part of the Delhi Sultanate and Mughal Empire and a province of Lahore. During the 18th century, amid the anarchy produced by the disintegration of Mughal Empire, Jalandhar experienced upheavals. In 1766, Faizullapuria Misal occupied it, and in 1811, Maharaja Ranjit Singh included it in the Sikh Empire. After the annexation of Punjab by the East India Company in 1849, Jalandhar city, which the British officers changed to Jalandhar, became the headquarters of the same name division and district. From the mid-19th century to the end, the Punjab administration considered Jalandhar as a densely populated area and a major recruiting area for settlers in the newly irrigated canal colonies in western Punjab. In the early years of the 1920s, the Khilafat movement began in the district to pressurize the British government to change its policy towards Turkey. Mahatma Gandhi expressed sympathy for the movement and supported it, in response to which the district was declared a notified area under the Rajdroh Meeting Act. In 1924, the birth of Pakistani general and military dictator Muhammad Zia-ul-Haq took place in this city. Before the partition of India, Jalandhar had a Muslim majority. According to the 1941 census, the Muslim population was 45.2%, while Hindus and Sikhs were 27.6% and 26.5% respectively. Within 10 years from 1941 to 1951, the Muslim population in Jalandhar decreased from 45.2% to 0.2%. अर्थव्यवस्था। जालंधर विविध आर्थिक आधार वाला एक संपन्न आर्थिक केंद्र है। यह शहर अपने खेल उपकरण और खेल सामान निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। यह चमड़े के सामान और वस्त्रों के उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र है। गेहूं, चावल और गन्ना जैसी फसलों की खेती सहित कृषि स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शैक्षणिक संस्थान। जालंधर में कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ एक मजबूत शैक्षणिक बुनियादी ढांचा है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) भारत के सबसे बड़े निजी विश्वविद्यालयों में से एक जालंधर में स्थित है। यह शहर शैक्षिक अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों से छात्रों को आकर्षित करता है। सांस्कृतिक विरासत। यह शहर सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है और यहाँ दिवाली, होली, बैसाखी और ईद सहित विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। स्थानीय संस्कृति इसके संगीत, नृत्य और व्यंजनों में परिलक्षित होती है। खान-पान। जालंधर अपने स्वादिष्ट पंजाबी व्यंजनों के लिए जाना जाता है। शहर में पंजाबी व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है और आप विभिन्न रेस्तरां और ढाबों, सड़क के किनारे भोजनालयों में स्थानीय विशिष्टताओं का आनंद ले सकते हैं। धार्मिक विविधता। जालंधर की आबादी विविध है और यह गुरुद्वारों, मंदिरों और मस्जिदों सहित विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थानों का घर है। यह शहर विभिन्न आस्थाओं और मान्यताओं को अपनाता है। औद्योगिक विकास। जालंधर में विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास देखा गया है। खेल के सामान और चमड़े के उत्पादों के अलावा हाथ उपकरण, ऑन्टो पार्ट्स और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में इसकी औद्योगिक उपस्थिति बढ़ रही है। जालंधर को अक्सर भारत का खेल शहर कहा जाता है क्योंकि यह खेल के सामान और खेल के सामान के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। परिवहन केंद्र। शहर सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो यात्रियों और माल दोनों के लिए परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसकी पंजाब और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। खरीदारी। जालंधर स्थानीय बाजारों और मॉल के साथ खरीदारी के कई अवसर प्रदान करता है, जहां आप खेल उपकरण से लेकर कपड़े और बहुत कुछ पा सकते हैं। शहर में हलचल भरे बाजार हैं, जिनमें फगवाड़ा गेट और नकोदर रोड जैसे केचा क्षेत्र शामिल हैं, जहां आप कपड़े, खेल उपकरण और स्थानीय हस्तशिल्प सहित विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। पर्यटक आकर्षण। शहर में रंगला पंजाब हवेली, वंडरलैंड थीम पार्क और देवी तालाब मंदिर सहित कई पर्यटक आकर्षण हैं।
शहर का जीवंत वातावरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जालंधर की खेल सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक जीवंतता का अनूठा संयोजन इसे पंजाब का एक गतिशील और महत्वपूर्ण शहर बनाता है। एक शैक्षिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में इसकी स्थिति के साथ साथ विनिर्माण उद्योग में इसकी भूमिका इसके आकर्षण और महत्व को बढ़ाती है। यदि आपके पास कोई विशिष्ट प्रश्न है या जालंधर के किसी भी पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक पूछें।